in difficult conditions. In actuality, yes, you can say that people are stranded, but they are stranded. Some people are stuck in their hotel rooms or in their houses. Because most people are stranded because roads have been cut off. So the roads have been cut off, bridges have been overflown. So those kind of problems, so people are not being able to reach to their places. But the people who are gravely in danger, our first priority is to make them safe and secure. We are pressed in helicopters today because of the weather being better. 22 helicopters have been pressed in. We have got people ITBP, and at this very juncture, I would like to take this time to congratulate the kind of work the military personnel and the paramilitary forces are doing, trying to evacuate all the people who are being stranded in various different conditions, not looking at their own safety in these matters, be in the waters, be in the hills. So I think the exemplary work being done by our paramilitary forces and army as well as our NRDF personnel is something that we should also look into at the moment. But we will continue to look forward, and we will do whatever is possible to make sure whoever is stranded, wherever they are stranded, and the army as well as the paramilitary forces are pushing in all the people to rescue all the people who are stranded in difficult positions. That is the people, there's this kind of media reports that are being flashed that 60,000 people are stranded in difficult conditions is something I think I'd ask you also to say, and we also try to make sure that communications is brought up to people who are stuck in their hotels or in other places in Uttarakhand can communicate with their family members and reassure them that they are okay. So we are also trying to get the communications going. The Home Secretary is already been sent. He's already in Uttarakhand and looking at the operation and relief operations going on. The Home Secretary, even the Home Minister was meant to be accompanying him, but as the Prime Minister and Mrs. Sonia Gandhi already went in the morning, the Home Minister is in Delhi, will be looking at will be in constant touch and is in constant touch with all the paramilitary forces as well as the state governments. Whatever help and whatever rescue operations are required will be done. कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड है सरकारी आधिकारिक रूप से, तो कल सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था कि हजारों लोग पूरे हादसे में मारे गए। देखिए, मैं सुषमा स्वराज जी के ट्वीट पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहूंगा और राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा। हमारी सबसे पहले जो कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी फंसा हुआ है उसको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए, निकाला जाए और उसको सेफ और सिक्योर किया जाए। और जो हमारे पास अभी तक ऑफिशियल टैली आई है केंद्र प्रदेश सरकारों से, वहां इतने नंबर बिल्कुल नहीं है और इसलिए मैंने कहा कि मैं इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं देना चाहता हूं। हम सारी पार्टियों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि पहले जितने लोग उस इलाके में फंसे हुए हैं उन सबको निकाला जाए। हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ है और जो भी केंद्र सरकार वहां पहुंचा पाएगी प्रदेश सरकार को मदद करने के लिए, हम वो सब चीजें मुहैया करा रहे हैं। जी, 65,000 घुसने की बात है, आपसे थोड़ी देर पहले गृहमंत्री ये तो मैंने आपको बताया कि फंसे हुए का मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ी में फंसे हैं कि पानी में फंसे हैं। ये फिगर भी ये प्रदेश सरकार ने हमको बताया है, ये फिगर भी प्रदेश सरकार ने हमको उपलब्ध कराया है। पर प्रदेश सरकार वहां जब सब कुछ तहस नहस, कम्युनिकेशन, सड़कें तहस नहस, पुल तहस नहस हो चुके हैं, तो ये तो टूरिज्म ने बता रखा कि कम से कम 60,000 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए हैं। परंतु 60,000 फंसे हुए नहीं, हमें उन लोगों की प्राथमिकता है जो पहाड़ों पे फंस गए हैं या नदी के आसपास कहीं फंसे हुए, उनको निकालने के लिए 22 हेलीकॉप्टर, जैसे मैंने पहले कहा, आज मौसम बेहतर होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर, कल आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे उसको चेन से हमने बांध करके रखा था कि अगर आंधी तूफान तेज आएगी वो भी नहीं जा पाए। उसको चेन किया गया, तो इतनी तेज मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर का खुद वजन को छोड़ते हुए उसने चेन तक को तोड़ के और वो हेलीकॉप्टर स्वेप्ट मीनिंग बह गया। वहां तक कब तक पहुंच पाएगी? देखिए, हमारी जो हेलीकॉप्टर जो मौसम है वहां तक हम लोग वहीं से जो सबसे खराब इलाके हैं,
जो सबसे खराब इलाके हैं वो केदारनाथ और उसके अगल बगल है। वहीं जो लोग कई ऐसे मुश्किलों में फंसे हुए हैं, वहीं से हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं। जब एक मिनट जी देखिए कि क्या मौसम और स्थिति इतनी खराब थी कि एक हेलीकॉप्टर फंस गया, पहली चीज। और दूसरा ये कि क्या वजह है कि इतने दिन हो गए प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है हर 2-3 साल पर, हम अभी अपने NDRF सिस्टम को। तो यहां पर MOS होम आरपीएन सिंह ये बताते हुए नजर आए कि उनकी पहली प्राथमिकता यहां पर यह है कि कम्युनिकेशन वहां पर काम करता रहे और जो भी लोग वहां पर स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, वो अब कहीं ना कहीं हेल्पलाइन के जरिए अपने रिश्तेदारों तक जानकारी देने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा, ये जो 60 से 70 हजार का आंकड़ा आ रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, आरपीएन सिंह इसको डिनाई करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि लोग होटल्स में हैं, घरों में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ों पर फंसे हैं। वो तादाद काफी कम है और वो तादाद जो है, जो पहाड़ों पे नदी के किनारे लोग फंसे हुए हैं, वो दरअसल बिल्कुल केदारनाथ एरिया की है, जिनको बाहर निकालने की कोशिशें जोर शोर से चल रही हैं। आज मौसम मेहरबान था, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया और 22 हेलीकॉप्टर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं।